आइज़िया 48-49 चैप्टर पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से, और फिर पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से। आइज़िया 48 चैप्टर 49 चैप्टर। रिबांता शराबाकासी anzuloro tala abakase ikatkin barokul rasa laba akatkin ashkar bakomboso uzazkin umbatala lahasi जैनकान बाशरा का सियासुल्लरा। कुछ नहीं कहना है खुदा परमेश्वर। आइए पवित्र आत्मा, आगे बढ़ने में कोई मतलब नहीं अगर आप पवित्र आत्मा इन वचन को हमें सिखाएंगे नहीं। हमारे मन खोल दीजिए, ये वचन हमें समझ में आ जाए, नासरी यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। चैप्टर 48। God, to convince the people of their obstinacy, reveals his prophecies. He exalts them to obedience. First verse से पढ़ेंगे। Hear ye this, O house of Jacob, which are called by the name of Israel, and are come forth out of the waters of Judah, which swear by the name of the Lord, and make mention of the God of Israel, but not in truth, nor in righteousness. For they call themselves of the holy city, and stay themselves upon the God of Israel. The Lord of hosts is his name. I have declared the former things from the beginning, and they went forth out of my mouth, and I shewed them, I did them suddenly, and they came to pass. Because I knew that thou art obstinate, and thy neck is an iron sinew, and thy brow brass. I have even from the beginning declared it to thee. Before it came to pass, I shewed it thee, lest thou shouldest say, Mine idol hath done them, and my graven image and my molten image hath commanded them. Thou hast heard, see all this, and will not yet declare it. I have shewed thee new things from this time, even hidden things, and thou didst not know them. They are created now, and not from the beginning, even before the day when thou heardest them not, lest thou shouldest say, Behold, I knew them. Yea, thou heardest not, yea, thou knewest not, yea, from that time that thine ear was not opened, for I knew that thou wouldst deal very treacherously, and wast called a transgressor from the womb. For my name's sake will I defer mine anger, and for my praise will I refrain for thee, that I cut thee not off. Behold, I have refined thee, but not with silver. I have chosen thee in the furnace of affliction. For mine own sake, even for mine own sake, will I do it. For how should my name be polluted? And I will not give my glory unto another. Hearken unto me, O Jacob and Israel, my called. I am he, I am the first, I also am the last. Amen. Mine hand also hath laid the foundation of the earth, and my right hand hath spanned the heavens. When I call unto them, they stand up together. All ye assemble yourselves, and hear, which among them hath declared these things. The Lord hath loved him. He will do his pleasure on Babylon, and his arm shall be on the Chaldeans. I, even I have spoken, yea, I have called him, I have brought him, and he shall make his way prosperous. Come, ye near unto me, hear ye this. I have not spoken in secret from the beginning,
from the time that it was, there am I. And now the Lord God and his Spirit hath sent me. Thus saith the Lord, thy Redeemer, the Holy One of Israel, I am the Lord thy God, which teacheth thee to profit, which leadeth thee by the way that thou shouldest go. Oh, that thou hadst hearkened to my commandments! Then had thy peace been as a river, and thy righteousness as the waves of the sea. Thy seed also had been as the sand, and the offspring of thy bowels like the gravel thereof. His name should not have been cut off nor destroyed from before me. Go ye forth of Babylon, flee ye from the Chaldeans, with a voice of singing declare ye, tell this, utter it, even to the end of the earth. Say ye, the Lord hath redeemed his servant Jacob, and they thirsted not when he led them through the deserts. He caused the waters to flow out of the rock for them. He clave the rock also, and the waters gushed out. There is no peace, saith the Lord, unto the wicked. Chapter 49. Christ being sent to the Jews complains of them. He is sent to the Gentiles. God's love to the church perpetual. First verse से पढ़ेंगे. Listen, O isles, unto me, and hearken, ye people from far. The Lord hath called me from the womb, from the bowels of my mother hath he made mention of my name. देखिए, ये सारे वचन हम मुंह से बोलने वाले वचन है, क्योंकि परमेश्वर की सच्चाई हमारे अंदर बात करता है. ओके, सेकेंड वर्स. And he hath made my mouth like a sharp sword, in the shadow of his hand hath hid me, and made me a polished shaft, in his quiver hath he hid me, and said unto me, thou art my servant, O Israel, in whom I will be glorified. Then I said, I have labored in vain, I have spent my strength for naught and in vain, yet surely my judgment is with the Lord, and my work with my God. And now, saith the Lord, that formed me from the womb to be his servant, to bring Jacob again to him, though Israel be not gathered, yet shall I be glorious in the eyes of the Lord, and my God shall be my strength. And he said, it is a light thing that shouldest be my servant, to raise up the tribes of Jacob, and to restore the preserved of Israel. I will also give thee for a light to the Gentiles, that thou mayest be my salvation unto the end of the earth. Thus saith the Lord, the Redeemer of Israel, and his Holy One, to him whom man despiseth, to him whom the nation abhorreth, to a servant of rulers, kings shall see and arise, princes also shall worship, because of the Lord that is faithful, and the Holy One of Israel, and he shall choose thee. Thus saith the Lord, in an acceptable time have I heard thee, and in a day of salvation have I helped thee, and I will preserve thee, and give thee for a covenant of the people, to establish the earth, to inherit the desolate heritages, that thou mayest say to the prisoners, go forth to them that are in darkness, shew yourselves, they shall feed in the ways, and their pastures shall be in all high places. They shall not hunger nor thirst,
neither shall the heat nor sun smite them. For he that hath mercy on them shall lead them. Even by the springs of water shall he guide them. And I will make all my mountains a way, and my highways shall be exalted. Behold, this shall come from far, and lo, this from the north and from the west, and this from the land of Sinim. Sing, O heavens, and be joyful, O earth, and break forth into singing, O mountains, for the Lord hath comforted his people, and will have mercy upon his afflicted. But Zion said, The Lord hath forsaken me, and my Lord hath forgotten me. Can a woman forget her sucking child, that she should not have compassion on the son of her womb? Yea, they may forget, yet will I not forget thee. Behold, I have graven thee upon the palms of my hands. Thy walls are continually before me. Thy children shall make haste, thy destroyers, and they that made thee waste shall go forth of thee. Lift up thine eyes round about, and behold, all this gather themselves together and come to thee. As I live, saith the Lord, thou shalt surely clothe thee with them all as with an ornament, and bind them on thee as a bride doeth. For thy waste and thy desolate places and the land of thy destruction shall even now be too narrow by reason of the inhabitants, and they that swallowed thee up shall be far away. The children which thou shalt have after thou hast lost the other shall say again in thine ears, The place is too strait for me. Give place to me that I may dwell. Then shalt thou say in thine heart, Who hath begotten me this, seeing I have lost my children, and am desolate, a captive, and removing to and fro? And who hath brought up this? Behold, I was left alone. This where had they been? Thus saith the Lord God, Behold, I will lift up mine hand to the Gentiles, and set up my standard to the people, and they shall bring thy sons in their arms, and thy daughters shall be carried upon their shoulders. The kings shall be thy nursing fathers, and their queens thy nursing mothers. They shall bow down to thee with their face toward the earth, and lick up the dust of thy feet, and thou shalt know that I am the Lord, for they shall not be ashamed that wait for me. Shall the prey be taken from the mighty, or the lawful captive delivered? But thus saith the Lord, even the captives of the mighty shall be taken away, and the prey of the terrible shall be delivered. For I will contend with him that contendeth with thee, and I will save thy children, and I will feed them that oppress thee with their own flesh, and they shall be drunken with their own blood, as with sweet wine, and all flesh shall know that I, the Lord, am thy Savior and thy Redeemer, the mighty one of Jacob. Hallelujah. कितना प्यारा है परमेश्वर. Amen. हमारे साथ परमेश्वर ये सारी बातें जब आइज़ाया में से करता है, तो हम इन बातों को अच्छे से हमारे अंदर ले लेना है. जैसे कोई बहुत अच्छी मनपसंद चीज़ को जैसे हम गले लगाते हैं, उस तरह से हमें इन वचनों को एम्ब्रेस कर लेना है, पकड़ लेना है, थाम लेना है, क्योंकि ये खुद परमेश्वर के मुँह की बात यशायाह की भविष्यवाणियों में हमको पढ़ने को मिलती है. मुझे बहुत पसंद है यूहन्ना सुसमाचार और ये बातें जो यशायाह भविष्यवाणी में लिखी जाती है. ये खुद परमेश्वर बोलता है. आमीन. तो हमको
हमको पवित्र आत्मा ये बहुत अच्छे से सारे वचनों को हमारे जीवन में बहुत नज़दीक लाता है, हमको बहुत एक मन कर देता है, उसके साथ हमको घुल मिला देता है। आमीन। इसके लिए मुझे इसके बारे में कभी डाउट नहीं रहता है कि परमेश्वर हमसे आज क्या कहेगा, आज क्या रहेगा। नहीं, कोई डाउट नहीं। बाइबल खोलो, आपको पता चलेगा परमेश्वर आपके बारे में क्या कह रहा है। आमीन। यशायाह 48 अध्याय 49 अध्याय हम पढ़ेंगे, हिंदी में भी ऐसा है बाइबल में से। परमेश्वर भविष्य का भी प्रभु, पहले वचन से पढ़ेंगे। हे याकूब के घराने, यह बात सुन, तो जो इस्राएली कहलाते और तुम जो इस्राएली कहलाते और यहूदा के सोतों के जल से उत्पन्न हुए हो, जो यहोवा के नाम की शपथ खाते हो और इस्राएल के परमेश्वर की चर्चा तो करते हो, परंतु सच्चाई और धर्म से नहीं करते, क्योंकि वे अपने को पवित्र नगर के बताते हैं और इस्राएल के परमेश्वर पर, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, भरोसा करते हैं। होने वाली बातों को तो मैंने प्राचीन काल ही से बताया है और उनकी चर्चा मेरे मुंह से निकली। मैंने अचानक उन्हें प्रकट किया और वे बातें सचमुच हुई। मैं जानता था कि तू हठीला है और तेरी गर्दन लोहे की नस और तेरा माथा पीतल का है। इस कारण मैंने इन बातों को प्राचीन काल ही से तुझे बताया, उनके होने से पहले ही मैंने तुझे बता दिया, ऐसा न हो कि तू यह कह पाए कि यह मेरे देवता का काम है। मेरी खोदी और ढली हुई मूर्तियों की आज्ञा से वह हुआ। तूने सुना है, अब इन सब बातों पर ध्यान कर और देखो, क्या तुम उसका प्रचार न करोगे? अब से मैं तुझे नई नई बातें और ऐसी गुप्त बातें सुनाऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। वे अभी अभी सृजी गई है, प्राचीन काल से नहीं, परंतु आज से पहले तूने उन्हें सुना भी न था। ऐसा न हो कि तू कहे कि देख, मैं तो इन्हें जानता था। हाँ, निश्चय तूने उन्हें न तो सुना न जाना, न इससे पहले तेरे कान ही खुले थे, क्योंकि मैं जानता था कि तू निश्चय विश्वासघात करेगा और गर्भ ही से तेरा नाम अपराधी पड़ा है। अपने ही नाम के निमित्त मैं क्रोध करने में विलंब करता हूँ और अपनी महिमा के निमित्त अपने आप को रोक रखता हूँ, ऐसा न हो कि मैं तुझे काट डालूं। देख, मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है, अपने निमित्त, हाँ, अपने ही निमित्त मैंने यह किया है। मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे? अपनी महिमा मैं दूसरों को नहीं दूंगा। परमेश्वर का चुना हुआ दास कुसरू, 12 वचन से आगे। हे याकूब, हे मेरे बुलाए हुए इस्राएल, मेरी ओर कान लगाकर सुन। मैं वही हूँ, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूँ। हालेलुया। निश्चय मेरे ही हाथ ने पृथ्वी की नींव डाली और मेरे ही दाहिने हाथ ने आकाश फैलाया। जब मैं उनको बुलाता हूँ, वे एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। हालेलुया। तुम सबके सब इकट्ठे होकर सुनो। उनमें से किसने कभी इन बातों का समाचार दिया? यहोवा उससे प्रेम रखता है। वह बेबीलोन पर अपनी इच्छा पूरी करेगा और कसदियों पर उसका हाथ पड़ेगा। मैंने, हाँ, मैं ही ने कहा और उसको बुलाया है। मैं उसको ले आया हूँ और उसका काम सफल होगा। मेरे निकट आकर इस बात को सुनो। आदि से लेकर अब तक मैंने कोई भी बात गुप्त में नहीं कही। जब से वह हुआ तब से मैं वहाँ हूँ। और अब प्रभु यहोवा ने और उसकी आत्मा ने मुझे भेज दिया है। अपने लोगों के लिए परमेश्वर की योजना। 17 वचन से आगे। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इस्राएल का पवित्र है, वह योग कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ।
भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता। हालेलुया। हम क्यों अशांत हो जाते हैं? हम क्यों गड़बड़ियों में फंसे रहते हैं? क्यों हम इतने विचलित बने रहते हैं? क्योंकि हम ध्यान से नहीं सुनते हैं परमेश्वर क्या कहता है। ओके, हमने बड़े ध्यान से उसकी आज्ञाओं को ध्यान से सुनना है, और फिर वो शांति नदी के समान और परमेश्वर का धर्म समुद्र की लहरों के समान हमारे अंदर उमड़ कर आएगा। आमीन। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता। तेरा वंश बालू के किनकों के तुल्य होता और तेरी निज संतान उसके कणों की समान होता। उनका नाम मेरे सम्मुख से न कभी काटा और न मिटाया जाता। 20 वचन से आगे, बेबीलोन में से निकल जाओ, कसदियों के बीच में से भाग जाओ, जय जयकार करते हुए इस बात का प्रचार करके सुनाओ, पृथ्वी की छोर तक इसकी चर्चा फैलाओ। कहते जाओ, यहोवा ने अपने दास याकूब को छुड़ा लिया है। जब वह उन्हें निर्जल देशों में ले गया, तब वे प्यासे न हुए। उसने उनके लिए चट्टान में से पानी निकाला, उसने चट्टान को चीरा और जल बह निकला। दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं, यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। तो शांति का खजाना मसीह के अंदर है। ओके, शांति का खजाना है, खजाना जो दुष्टों के पास नहीं है। हालेलुया। तो दुष्ट में और आपके अंदर, अन्य जातियों में और आपके अंदर क्या फ़र्क है? शांति का फ़र्क है। उनके अंदर शांति नहीं है, वो पर्सनल प्रॉपर्टी है परमेश्वर की। हालेलुया। हमारे अंदर शांति है। हालेलुया। इज़राइल जाति जाति के लिए प्रकाश 49 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। हे द्वीपों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो, हे दूर दूर के राज्यों के लोगों, ध्यान लगाकर मेरी सुनो। यहोवा ने मुझे गर्भ ही में से बुलाया, जब मैं माता के पेट में था तब ही उसने मेरा नाम बताया। उसने मेरे मुंह को चोखी तलवार के समान बनाया और अपने हाथ की आड़ में मुझे छिपा रखा। उसने मुझको चमकीला तीर बनाकर अपने तरकश में गुप्त रखा और मुझसे कहा, तू मेरा दास इस्राएल है, मैं तुझ में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। तब मैंने कहा, मैंने तो व्यर्थ परिश्रम किया, मैंने व्यर्थ ही अपना बल खो दिया है। तो भी निश्चय मेरा न्याय यहोवा के पास है और मेरे परिश्रम का फल मेरे परमेश्वर के हाथ में है। अब यहोवा जिसने मुझे जन्म ही से इसलिए रचा कि मैं उसका दास होकर याकूब को उसकी ओर लौटा ले आऊं, अर्थात इस्राएल को उसके पास इकट्ठा करूं, क्योंकि यहोवा की दृष्टि में मैं आदर योग्य हूं और मेरा परमेश्वर मेरा बल है। उसी ने मुझसे यह भी कहा है, यह तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के गोत्रों का उद्धार करने और इस्राएल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे। हालेलुया। देखा, असाइनमेंट देता है परमेश्वर, प्लान देता है, पर्पस, मकसद देता है हमारे मसीही जीवन को। और एक बार नेक्स्ट इसके आगे पढ़ेंगे, मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा कि मेरा उद्धार पृथ्वी के एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। हालेलुया। जो मनुष्यों से तुच्छ जाना जाता, जिससे जातियों को घृणा है और जो अपराधियों का दास है, उससे इस्राएल का छुड़ाने वाला और उसका पवित्र अर्थात यहोवा यूं कहता है, राजा उसे देखकर खड़े हो जाएंगे और हकीम दंडवत करेंगे। यह यहोवा के निमित्त होगा जो सच्चा और इस्राएल का पवित्र है और जिसने मुझे चुन लिया है। यरूशलेम का पुनः निर्माण। यहोवा यूं कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, उद्धार करने के दिन मैंने तेरी सहायता की है। मैं तेरी रक्षा करके तुझे लोगों के लिए एक वाचा ठहराऊंगा, ताकि देश को स्थिर करे और उजड़े हुए स्थानों को उनके अधिकारियों के हाथ में दे दे, और बंदियों से कहे, बंदी गृह से निकल आओ, और जो अंधियारे में है उनसे कहे, अपने आप को दिखलाओ।
वे मार्गों के किनारे किनारे पेट भरने पाएंगे। सब मुंडे टीलों पर भी उनको चराई मिलेगी। वे भूखे और प्यासे न होंगे, न लूह न घाम उन्हें लगेगा, क्योंकि वह जो उन पर दया करता है। हालेलुया। शारीरिक कष्ट के बारे में हमारे लिए तसल्ली है। क्या तसल्ली है? हमारा परमेश्वर जो हम पर दया करता है वही उनका अगुवा होगा और जल के सोतों के पास उन्हें ले चलेगा। आमीन। तो हम हार्डशिप के लोग नहीं हैं। हम लहू पसीना बहा बहा कर अपनी रोजी रोटी कमाने वालों में हम नहीं हैं। हालेलुया। क्योंकि जो हम पर दया करता है उसकी अगुवाई में हम चलते हैं। वो हमारा अगुवा है। वो हमारे लिए जल के सोतों के पास लेकर जाने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। 11 वचन से आगे, मैं अपने सब पहाड़ों को मार्ग बना दूंगा और मेरे राजमार्ग ऊंचे किए जाएंगे। देखो, ये दूर से आएंगे और ये उत्तर और पश्चिम से और सीनियों के देश से आएंगे। हे आकाश, जय जयकार कर। हे पृथ्वी, मगन हो। हे पहाड़ों, गला खोलकर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है और अपने दीन लोगों पर दया की है। हालेलुया। देखो, अपनी प्रजा को ही वो सिर्फ शांति देता है, दुष्ट को नहीं देता है। ध्यान रखना, ओके। परंतु सियोन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। हम ऐसे ही करते हैं। जब हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होता है तो हमको लगता है परमेश्वर हमें भुला दिया। 15 वचन से आगे, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। ओके, ध्यान रखना, परमेश्वर हमारी शहरपनाह को ध्यान रखता है, चौकसी करता है, रखवाला है वो हमारे शहरपनाह का। तेरे लड़के फुर्ती से आ रहे हैं और खंडहर बनाने वाले और उजाड़ने वाले तेरे बीच से निकले जा रहे हैं। हमारा लाइफ क्यों चेंज हो जाता है मसीह में आने के बाद? क्योंकि हमारे टूटे शहरपनाह से घुसपैठ करके जो भी नुकसान करने वाले दुष्ट कामों को हमारे शरीर, प्राण, आत्मा, जीवन, परिवार, हमारे द्वारा सब जगह फैला के रखा था, अब सब वो हमारे अंदर से निकलते जाते हैं। ठीक है। 18 वचन आगे, अपनी आंखें उठाकर चारों ओर देख, वे सबके सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, तू निश्चय उन सबों को गहने के समान पहन लेगी। तू दुल्हन के समान अपने शरीर में उन सबको बांध लेगी। ये मसीही चरित्र के विषय में है। आपको जो चंगाई मिलती है, आपके ब्लेसिंग्स आपको मिलते हैं, आपकी शांति दिखने में आ जाती है, आप परमेश्वर की महिमा को अपने अंदर से प्रकट होने देते हैं। ये सब कुछ परमेश्वर कहता है इकट्ठा करके तेरे पास आ चुका है। ओके, तो विपत्तियों से छुटकारा पाना, दुष्ट हाथों से छुटकर आज़ाद हो जाना, परमेश्वर की महिमा करना, गवाहियों को बोलना, परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन करना, ये सब परमेश्वर का इकट्ठा करके आपके अंदर लाके रख दिया गया है। हालेलुया। और वो हमारे गहना है और हम दुल्हन के समान हम पर हमारे शरीर में से वो सब बातों को प्रकट होने देते हैं। आमीन। 19 वचन से आगे, तेरे जो स्थान सुनसान और उजड़े हैं और तेरे जो देश खंडहर ही खंडहर है, उनमें अब निवासी न समाएंगे और तुझे नष्ट करने वाले दूर हो जाएंगे। हालेलुया। इसके लिए मसीह हो जाने के बाद में, मसीह में आने के बाद में हमारे आत्मा के अंदर परमेश्वर का आत्मा बैठ जाता है, खत्म हो गया। फिर दुष्ट का हम पर रोष नहीं चलता है, वो बाहर से दूर से हमको सताता है, हमारे आत्मा के अंदर का कुछ भी वो बिगाड़ नहीं पाता है। आमीन। तेरे पुत्र जो तुझसे ले लिए गए, वे फिर तेरे कान में कहने पाएंगे, यह स्थान हमारे लिए छोटा है, हमें और स्थान दे कि उसमें रहे। तेरे पुत्र यानी हमारे सब कुछ
शरीर, प्राण, आत्मा, मटेरियल्स, हमारे इमोशंस, हमारी इच्छाएं, हमारा सब कुछ जो शैतानी जगत में रहते समय हम खो चुके थे, तितर पितर हो चुके थे, बदनाम हो चुके थे, गए गुजरे बन चुके थे, लताड़े गए थे, अपमानित कर दिए गए थे, घृणित कर दिए गए थे, अब क्या हो जाएगा? वो सब कुछ अब हमारा जो शैतान ने कुचल दिया था, अब मसीह में आने के बाद हमारा सब कुछ नए सिरे से, सब कुछ सिधाई में और भरपूरी के साथ खुशहाली में बदल दिया जाएगा। आमीन। आगे हम पढ़ेंगे और फिर ये इतना ज़्यादा हो जाएगा हमारे अंदर फैलाव परमेश्वर की अच्छाई का कि हमारे लिए ये समझ आ जाएगा हमें और भी बहुत कुछ आज्ञा पालन करना है, हमें और भी ज़्यादा अपनी कुव्वत बढ़ानी है, हमें और ज़्यादा समय चाहिए कि हम परमेश्वर के और ज़्यादा काम कर सके, हमें और कुछ अपनी खुद की बातों को अलग करना चाहिए ताकि हम परमेश्वर की बातों को पूरा कर सके। इस तरह से हमारी चौखटें बढ़ते जाती है, हदें बढ़ती जाती है। 21 वचन से आगे, तब तू मन में कहेगी, किसने इनको मेरे लिए जन्माया? मैं तो पुत्रहीन और बांझ हो गई थी, दासत्व में और यहाँ वहाँ मैं घूमती रही, इनको किसने पाला? देख, मैं अकेली रह गई थी, फिर ये कहाँ थे? 22 वचन से आगे, प्रभु यहोवा यूँ कहता है, देख, मैं अपना हाथ जाति जाति के लोगों की ओर उठाऊंगा और देश देश के लोगों के सामने अपना झंडा खड़ा करूंगा। तब वे तेरे पुत्रों को अपनी गोद में लिए आएंगे और तेरी पुत्रियों को अपने कंधे पर चढ़ाकर तेरे पास पहुंच जाएंगे। राजा तेरे बच्चों को के निज सेवक और उनकी रानियां दूध पिलाने के लिए तेरी धाइयां होगी। वे अपनी नाक भूमि पर रगड़कर तुझे दंडवत करेंगे। इसके लिए मैं बोलती हूँ, वो नाक रगड़ रगड़ कर तेरे सामने झुका दिए जाएंगे। मैं इसीलिए बोलती हूँ, दुष्ट के जगत के लोग हमेशा आपके सामने बीमारियाँ ऊंची होकर नहीं रहेगी, ओके, विपत्तियाँ ऊंचे सर करके नहीं रहेंगे, फाइनेंस फेलियर्स हमेशा के लिए ऊंचे सर करके नहीं रहेंगे। नाक रगड़ कर वो परमेश्वर के सामने घुटना टेक देंगे, आमीन, दंडवत करेंगे और तेरे पाँवों की धूल चाटेंगे। तब तू यह जान लेगी कि मैं ही यहोवा हूँ। मेरी बाट जोहने वाले कभी लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया। इसके लिए आप अभी जो समय से चलते हैं उससे डरिए मत, क्योंकि समय बदलने वाला परमेश्वर हमारे अंदर मौजूद है। 24 वचन से आगे, क्या वीर के हाथ से शिकार छीना जा सकता है? क्या दुष्ट के बंदी छुड़ाए जा सकते हैं? ठीक है, तो कोई परवाह नहीं, कितनी जटिल बीमारी है, कोई परवाह नहीं है। देखिए वचन कहता है 25 वचन से आगे, तो भी यहोवा यूँ कहता है, हाँ, वीर के बंदी उससे छीन लिए जाएंगे और दुष्ट का शिकार उसके हाथ से छुड़ा लिया जाएगा। यानी आप लोग हमेशा ही विरोधियों के हाथों में पड़े नहीं रहेंगे, ओके, मुश्किलातों में आप पड़े नहीं रहेंगे, ओके, आप गरीबी में पड़े नहीं रहेंगे, आप फाइनेंशियल फेलियर में पड़े नहीं रहेंगे। एक समय तक ही उन सारे बातों का असर आपके लाइफ के ऊपर लोग कराया करते हैं, लेकिन उसका एक्सपायरी टाइमिंग परमेश्वर ने रखा हुआ है, ओके, वो लंबे समय तक आपके पीछे नहीं रह सकते, ना ही उनको आराम मिलेगा जब वो आपका पीछा करेंगे। तो विरोधियों का हमारे ऊपर जोर लगना केवल एक छोटा सा कष्ट का समय रहता है, छोटा सा समय रहता है वो, लेकिन हमारे अंदर परमेश्वर का वचन एक जगह हमने ये पढ़ रखा है पिछले दिनों में कि बहुत बड़ी महिमा की आशा वो हमारे अंदर उत्पन्न करता है। छोटी सी पीड़ाओं का समय, लेकिन बहुत बड़ी परमेश्वर की ओर से कुछ प्राप्त करने की आशा हमारे अंदर वो जीवित करता है। ठीक है, तो महिमा का समय रहता है जब आप विरोध के बीच में से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए चल रहे होते हैं। तो वो समय आपको लंबा समय नहीं लगना चाहिए, आपको धीरज के साथ उस समय को काटते हुए आगे जाना है, और आपका गारंटेड आंसर है कि आप उसमें पड़े रहने के लिए नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कितना भी जटिल समस्या क्यों ना हो, कितनी भी जटिल मुश्किलें क्यों ना हो, उसके पंजे में से, उसके जकड़े में से आपको छुड़ाने की ताकत रखता है। आमीन।
आगे पढ़ेंगे हम। दुष्ट का शिकार उसके हाथ से छुड़ा लिया जाएगा, क्योंकि जो तुझसे लड़ते हैं उनसे मैं आप मुकद्दमा लड़ूंगा और तेरे बाल बच्चों का मैं उद्धार करूंगा। जो तुझ पर अंधेर करते हैं उनको मैं उन्हीं का मांस खिलाऊंगा। देखो, आपके बाल बच्चों के लिए भी परमेश्वर ने वायदा दिया है और वो कहता है मैं मुकद्दमा लड़ूंगा। हालेलुया। जो तुझसे लड़ते हैं उनसे मैं आप मुकद्दमा लड़ूंगा। तो इसका मतलब आपका विरोधी कोर्ट के अंदर आपके साथ फाइट कर रहा है, स्पिरिचुअल कोर्ट के अंदर। ओके, आपका विरोधी आपके ऊपर बल चढ़ाकर बैठा हुआ है, क्योंकि उसके पास आपके ऊपर चढ़ाई करने का कानूनी अधिकार मिला हुआ है। कुछ तो आपका ऐसा एक एरिया ऑफ लाइफ है जो वो परमेश्वर को दिखाता है और बोलता है देख, ये है उसकी असलियत, इसके लिए वो मेरे कब्जे से आज़ाद नहीं कर सकता है। तो ओके, कानूनी हक जताता है वो। ओके, और फिर वो कानूनी हक जब जता रहा होता है तो परमेश्वर कहता है, हमको कहता है तू चिंता मत कर, अब मैं तेरी ओर से वकालत की जॉब करूँगा, मैं तेरा मुकदमा लड़ूंगा, मैं तेरी ओर से बात करने के लिए खड़ा रहूँगा। और वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। ओके, और फिर वो कहता है तेरे बाल बच्चों का मैं उद्धार करूँगा। हालेलुया। तो हमारे लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को हमारा वकील होकर, एडवोकेट होकर मुकदमे के बीच में हमारी ओर से बोलने के लिए रखा है। और इसके लिए परमेश्वर के सामने हमारे शत्रु के केसेस हार जाते हैं। ओके, शत्रु की ओर से लगाई गई दोहाई हार जाती है। ओके, वो दोहाई लगाता है कि देख, ये इंसान ने मेरा ऐसा बिगाड़ के रखा है, तू इसके ऊपर अभी मैं इसके ऊपर नालिश करूँगा, तू मेरे आड़े नहीं आना है। परमेश्वर को वो जायज कानूनी अधिकार बताता है। ओके, लेकिन परमेश्वर कहता है हमको कि तू चिंता मत कर। ओके, इस केस को हरा देना यीशु को आता है। हालेलुया। कितना भी जायज रीज़न क्यों ना हो शत्रु के पास आपको बंदिश बना के रखने का, पर प्रभु यीशु के पास आपके बारे में बात करने का रास्ता है। हालेलुया। और वो न्याय के सामने आपको निर्दोष साबित करके छुड़ा लेगा। आमीन। और सिर्फ आप ही को नहीं, आपके बच्चों का भी वो उद्धार करेगा। जो तुझ पर अंधेर करते हैं उनको मैं उन्हीं का मांस खिलाऊंगा और वे अपना लहू पीकर ऐसे मतवाले होंगे जैसे नए दाख मधु से होते हैं। तब सब प्राणी जान लेंगे कि तेरा उद्धारकर्ता यहोवा, तेरा छुड़ाने वाला याकूब का शक्तिमान मैं ही हूँ। हालेलुया। तो हमको परिश्रम करना व्यर्थ नहीं जाता है। जब हम परमेश्वर के अंदर समय लगाते हैं, चाहे वो हम अपने खुद के लिए करें, ऐसा परमेश्वर के सामने अपने आप को रखें, या फिर हम किसी औरों के लिए जब घुटने टेक देते हैं परमेश्वर के सामने, दिन और रात हम दोहाई लगाते हैं, तो हमारा ये परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। ये गारंटेड दे दिया है वचन। ओके, तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ जाने वाला नहीं है। जब तुम मसीह के अंदर हो, मसीह में हो और तुम पर कोई अंधेर कर रहा है, तो आप निश्चिंत रहो, आपका मुकाबला परमेश्वर करने जा रहा है। ओके, तो आप कभी भी ये बात से हार नहीं जाना है कि आपकी ओर से कौन बात करेगा। कभी इस बात की ओर अपना ध्यान नहीं लगाना है कोई मेरी ओर से मेरे डिवाइन हेल्पर्स होकर खड़े रहेंगे या नहीं। ओके, कभी आपको ये देखना नहीं है कोई मेरा फेवर करेगा कि नहीं करेगा, क्या मेरा वहाँ पर ठीक होगा कि नहीं होगा, क्या मेरे द्वारा कुछ अच्छा बनेगा या नहीं बनेगा। आपको ये कोशिशें नहीं करना है। आपको कंप्लीटली और लगातार प्रभु यीशु में आप सब कुछ कर सकते हैं। इस हिम्मत को इकट्ठा करके आगे जाना है। आमीन। यहाँ पे क्या दिया है? जो तुझ पर अंधेर करते हैं उनको मैं उन्हीं का मांस खिलाऊंगा। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि जो आपके ऊपर अंधेर करते हैं, ओके, मतलब जो आपको परेशान करते हैं, उन्होंने मांस खाया हुआ है। ठीक है, तो उन्होंने
मांस खाया हुआ है और परमेश्वर कहता है उन्होंने जो मांस खाया है जिसके कारण उनको आपके ऊपर प्रभुता करने का, आपके ऊपर ज्यादती करने का समय लग गया है, मिल गया है, उनको फ्रीडम मिला है क्योंकि उन्होंने किसी का मांस खा रखा है। तो अब मैं तुमको बताता हूँ, अब ये सारा अंधेर मैं उन्हीं के ऊपर उल्टाने जा रहा हूँ। वो अब क्या होने वाला है, अब उनका मांस मैं उनको खिलाऊंगा, मैं उन्हीं का मांस खिलाऊंगा और वे अपना लहू पीकर ऐसे मतवाले होंगे जैसे नए दाखमधु से होते हैं। तब सब प्राणी जान लेंगे कि तेरा उद्धारकर्ता यहोवा और तेरा छुड़ाने वाला याकूब का शक्तिमान मैं ही हूँ। जब आप बोलते हैं ना कि ये समस्या आ गई है, ये परेशान कर रहा है, वो बातें हो रही है हमारे बारे में, ये जब आप बोलते हैं तो आपका अंधेर करने वाले ने कोई मांस खाया होता है और कोई लहू पिया होता है और वो उसके अंदर इतना तल्लीन हो चुका होता है, मगन हो चुका होता है कि वो आपके ऊपर अंधेर करते 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 इतना मतवाला बन जाता है कि वो भूल जाता है कि आप परेशान हो रहे हो उसके कारण। ओके, वो भूल जाता है कि वो मूर्खता कर रहा है आपको सताने से। ओके, वो भूल जाता है कि उसका ऐसा सताना उसके लिए भारी पड़ने वाला है। ओके, वो नशीला बन जाता है उस अंधेर करने में। कौन कारण बनता है उसके पीछे? उसने खाया हुआ मांस और उसने पिया हुआ लहू उसको वो अंधापन दे देता है कि वो दुष्टता करने में माहिर बनता जाता है, पूरी तरह से वो दुष्टता करने के ओवरटेक में चला जाता है। ओके, तो इस प्रकार से परमेश्वर कहता है अब मैं उसको उसका मांस खिलाऊंगा और उसी का लहू पिलाऊंगा और फिर उसको ऐसा नशीला बना दूंगा कि जैसा दाख मधु पिया हुआ नशीला रहता है। ओके, तो वो उसके ऊपर, खुद के ऊपर वो अंधेर करने लगेगा, वो सारा सब कुछ पलटकर उसके पास चला जाएगा और फिर सब प्राणी जान लेंगे कि तेरा उद्धारकर्ता यानी हमारा छुड़ाने वाला यहोवा है। आमीन, और वो शक्तिमान है। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे 26 वचन, जो तुझ पर अंधेर करते हैं उनको मैं उन्हीं का मांस खिलाऊंगा और वे अपना लहू पीकर ऐसे मतवाले होंगे जैसे नए दाख मधु से होते हैं। तब सब प्राणी जान लेंगे कि तेरा उद्धारकर्ता यहोवा और तेरा छुड़ाने वाला याकूब का शक्तिमान मैं ही हूँ। ओके, तो आप जब भी ऐसा अंधेर आपके ऊपर होगा, कोई भी ऐसा परेशान करता होगा, तो आपको क्या सीक्रेट समझ जाना है उसके बारे में? उसने आपका कुछ तो ऐसा चीज़ है जो खा लिया है और उसके साथ साथ उसके पास और एक चीज़ क्या है, उसने मांस खाया है कोई चीज़ का और लहू पिया है कोई चीज़ का, और जिसके कारण वो आपको सताने में मगन हो चुका है। तो आपने उसके अंदर से खिलाया हुआ मांस और पिया हुआ लहू को जला देना है। नासरी यीशु के नाम से मुझ पर अंधेर करने वाले ने जो मांस खाया है, जो लहू पिया है, नासरी यीशु के नाम से मैं उसे जला के डिस्ट्रॉय कर देती हूँ। ओके, और उसके मतवालेपन को, जैसे दाख मधु के साथ वो मतवालापन आता है, वैसा उसके ऊपर जो अंधेर करने वाला आत्मा उसके अंदर नालिश कर रहा है, उसके अंदर से काम कर रहा है मुझे सताने के लिए, नासरी यीशु के नाम से उसको मैं बांध देती हूँ, उखाड़ देती हूँ और फेंक देती हूँ नरक के आग में जाकर वो नाश हो जाए। और फिर उस इंसान को प्रभु यीशु मसीह पता चलने के लिए प्रार्थना करना है कि उद्धारकर्ता यहोवा वो पहचानने लगे और उसकी शक्ति को वो समझने लगे और मानने लगे, और उसके बाद वो अंधेर नहीं कर पाएंगे। आमीन। तो ये सीक्रेट रास्ता है जो आपको सताते हैं, उनके बारे में आप कैसे उनके विरोध में खड़े होना है। प्रभु यीशु मसीह सच में हमारे लिए अनुग्रह का दाता, अनुग्रह का सामर्थ्य है। आमीन। वो दया का धनी है, वो हमारे साथ कभी भी गद्दारी नहीं करेगा, विश्वास योग्य वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ेगा, जो बोलता है वो वैसा ही करेगा। आमीन। तो हमने उसके ऊपर टेक लेना मतलब बहुत बड़ी बात है, हमारा जीवन का सारा मसला वो हल करेगा। हालेलुया। 2 years Bible reading,
प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं जो पवित्र आत्मा ने वचन को सिखाया और उसके अनुसार परमेश्वर हमारे जीवन के समझ, ज्ञान, बुद्धि में उन्नति लाया और हमें आशीषित किया। हर एक झूठ का ताकत तोड़ने का रास्ता दिखाया। तुझे धन्यवाद करते हैं। सच्चाई हमारे अंदर बनी रहे और हम इसके अंदर फिट एंड फिक्स होते रहे। ईश्वरीय रचना में हम बदलते जाएं। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। जॉन 4 चैप्टर 43 वर्स से 54 वर्स तक। 1 किंग्स 15th चैप्टर। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 43 वचन से 54 वचन तक और पहले राजाओं की पुस्तक 15 अध्याय। 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान को हमने अपने अकेले में बैठकर अपने व्यक्तिगत समय में पूरा पढ़ना है। जैसे ही हम व्यक्तिगत समय में परमेश्वर का वचन अकेले में बैठकर पर्सनल टाइम में इसे पढ़ेंगे, परमेश्वर का अनुग्रह का आत्मा हमको उसकी समझ देगा, हमको वो मुलाकात करेगा, हमसे बातें करेगा। हालेलुया। और हमें गहरी गहरी ऐसे ऐसे बातें देगा हमारी सोचों के अंदर जो हमें सक्सेसफुल बनाएंगे। ओके, जो हमें बहुत ज़्यादा उन्नति के मार्गों में जाके रख देंगे। हालेलुया। बहुत कुछ प्राप्त करने का हमको मौका मिलेगा। आमीन। तो हमने यह अवसर को कभी नहीं खोना है और 2 साल के अंत में देखेंगे अनुग्रह के आत्मा से हम सीखे हुए लोग परमेश्वर के अच्छे काम करने के लिए भले योजनाओं में हम उठा लिए जाएंगे। परमेश्वर हमारा उपयोग करेगा। हालेलुया। तो हम इस बात के लिए परमेश्वर के अधीन जाना है और अनुग्रह के आत्मा को काम करने देना है। अकेले में बैठकर परमेश्वर के इन वचनों की स्टडी करते हुए हमने पढ़ना है। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह हमें इसके लिए अनुग्रह का आत्मा हमारे अंदर रखा है हमारी सहायता करने के लिए, और निश्चित हमने इस अनुग्रह के आत्मा का लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर तेरे वचनों को पवित्र आत्मा के द्वारा फिट एंड फिक्स करते रहना और हमें ईश्वरीय रचनाओं में बनाते रहना। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं खुदा, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, आमीन।